Hello, my dear students. Welcome to our today's orthodontics lecture. Till now, we have completed oral surgery, prosthodontics, periodontics. Out of all these lectures, you have gained a lot experience regarding the real clinical scenario of your examination, which questions to attempt, which to leave, how to go through clinical based scenario. All these questions will give you a lot of realistic experiences regarding your study, what you have read. Now, when we are discussing about MCQ, they are just testing your approach, how to go through any clinical scenario, how do you know the basics, all these things they want to check. So, you have to go through the basics first, and after that, you have to go through tough questions because you are having shortage of time. This is the third time we are completing the course for all the students who have joined us in February. In the previous February, we have started the batch. So all those who are late, we are not regretting. It is never too late to mend. So in today's lecture, we'll be discussing orthodontics and most important 100 questions we'll be discussing. So if you are preparing for this dental GPSC as well as tutor exams, there is the time is not delayed. So we will wait for all the students to join. Afterwards, we will start today's lecture. Some error is going on. For all those students who are watching online, please let us know whether the screen is visible or not. Mm, Hello. So let us request all the students to mark their presence. Afterwards, we will start today's lecture. So these orthodontics questions will give you some confidence if you are getting a score of above 70 or 80 marks. Okay. So once all the students mark their presence, we will start today's lecture. Savan is present. What about other students? Will request all the students. What about voice? Is this clear or not? Okay, we will start today's lecture. Our first question regarding growth and development. Patient's age is 12 years. So it is a case of mixed dentition. Skeletal class 2, not dental. Okay, skeletal class 2. Characterized by retrognathic mandible. Obviously, mandible will be retrognathic in case of skeletal class 2. His cervical vertebral maturation (CVM) stage is assessed as CS3. Now clinician is considering functional appliance theory. Okay, this is the scenario. So one more important tip or trick or advice to all the students. When you find such lengthy questions, don't waste time. In the first round, go with direct MCQs, like which is the longest cranial nerve. So there is only one answer for this. So one sentence, one answer. You have to always find such MCQs in the first round. When if you go with this detailed description, you will waste your time. Okay.
So we'll wait for the answer. In the first question, options are the clinician is planning twin block functional appliance. Okay, not myofunctional. Which of the following describes the most appropriate rationale for timing this intervention? ये टाइम पर ये अप्लायंस यूज करने का क्या अप्रोप्रिएट आइडिया है, कौन सा थिंकिंग है? ठीक है, पहला कि ये CS1 पर स्टार्ट करना चाहिए ताकि ऑर्थोपेडिक इफेक्ट आए। CS3 है वो बी, ऑप्शन बी, वो प्यूबर्टल ग्रोथ बताता है ताकि ये स्टेज पे आप कोई इंटरवेंशन करोगे अप्लायंस का तो आपको मैक्सिमम इफेक्ट मिलेगा। और CS6 में आप करोगे तब फ्यूचर स्टेबिलिटी का फंड आएगा आपको। और फोर्थ, ऑर्थोपेडिक इंटरवेंशन CS3 में नहीं कर सकते हो रूट रिजॉर्प्शन के कारण। तो ये जो लेवल है इक्वेशन का मैंने पहले बता दिया था, ये इक्वेशन पर दिमाग मत लगाना है, फिर भी आप ई करना है तो ई कर दीजिए, टाइम नहीं बिगाड़ना है। तो यहाँ पे एक आंसर आया है बी। और कोई आंसर? सही है, ई करना पड़ेगा क्योंकि देखो इतना सारा सेंटेंस फिर घुमा फिरा के और ये CS3 CS1 इतना कंफ्यूजिंग वाला होता है। ठीक है, एक आंसर आया है बी। ठीक है, अब देखते हैं इसका आंसर क्या है। सही आंसर है बी। ठीक है, CS3 यानी कि जो ग्रोथ स्पट होते हैं चार, 1 2 3 4, आपको तो पता ही होगा। ठीक है, बिफोर बर्थ, आफ्टर बर्थ और प्यूबर्टी वाला। ठीक है, और लेट वाला। ठीक है, तो वो CS3 पीक ऑफ मैंडिबुलर ग्रोथ है। ठीक है, प्यूबर्टी के टाइम गोल्डन विंडो है। तो आपको सीधा क्वेश्चन ये भी पूछ सकते हैं गोल्डन विंडो कौन सा है, तो CS3 का आएगा। ठीक है, और यही स्टेज में सोमेटिक ग्रोथ होती है और मैंडिबुलर लंबा होता है, इलोंगेशन होता है। इसमें से बहुत सारे एमसीक्यूज बन सकते हैं। मैंडिबुलर इलोंगेशन अकर्स इन बीच विंडो, गोल्डन, सिल्वर, प्लेटिनम, ये भी नाम रख सकते हैं। दूसरा, कौन से स्टेज में मैंडिबुलर ग्रोथ अपनी सबसे ज्यादा ग्रोथ अचीव कर सकता है, ये आपको याद रखना चाहिए। और तीसरा, स्केलेटल का जो कंट्रीब्यूशन है वो कब हम अचीव कर सकते हैं मैक्सिमम, तो आंसर आएगा CS3। ठीक है, तो ये आपको नोट्स दी जाएगी CS3 CS6 ये क्या है। ऐसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आ सकते हैं अगर पेपर टफ बनाना है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन बायोमैकेनिक्स के ऊपर है। यू आर क्लोजिंग ए मिडलैंड डायस्टेमा। मिडलैंड डायस्टेमा जैसे ही दिमाग में आता है तो रेसिप्रोकल एंकरेज याद आना चाहिए। यूजिंग ए पावर चेन ऑन ए ब्लैंक इंच, यहाँ पे एक गलती हो गई है, थोड़ा ये डायमीटर चला गया है, कोई बात नहीं। You notice that central incisors are tipping mesially and their crowns are rotating lingually. तो ये डायमीटर को जाने दो, यहाँ पे ये दिखाओ कि दोनों इंसाइजर्स मिडल में आ रहे हैं, वो तो सही बात है। क्राउन्स रोटेटिंग लिंगुअली। ठीक है, अब ये प्योर बॉडीली मूवमेंट आपको चाहिए और टिपिंग आपको अटकाना है। ठीक है, टिपिंग नहीं चाहिए, खाली बॉडीली मूवमेंट चाहिए। तो कहाँ पे ये फोर्स अप्लाई करना है? ठीक है, तो ये ऊपर का जो पोर्शन है वो अगर नहीं होता एग्जाम में तो भी चलता, खाली ये पूछा गया कि आपको बॉडीली मूवमेंट चाहिए तो कहाँ फोर्स अप्लाई करना चाहिए। ऑप्शन से एक, एट द लेवल ऑफ ऑर्थोडोंटिक ब्रैकेट। ऑप्शन बी, डायरेक्टली टू थ्रू द सेंटर ऑफ रेजिस्टेंस। ऑप्शन सी, ओक्लूजल टू द ब्रैकेट। और ऑप्शन डी, एट द इंसाइजल एज। सारे लोग आंसर बी बता रहे हैं। और कोई आंसर? सही है, बी इज द आंसर। ओके, you have to apply center of resistance, body movement तो center of resistance। ठीक है, तो आप ऐसे भी याद रख सकते, बॉय जो होता है वही हमेशा क्लास में रिप्रेजेंटेटिव बनता है, CR बनता है। ठीक है, तो बॉडीली मूवमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन,
स्पेस मैनेजमेंट के ऊपर है। 8 साल का बच्चा है, बच्ची है, सॉरी फीमेल है। प्रेजेंस विथ यू शेप लोअर आर्च, ठीक है, नीचे की आर्च यू शेप्ड है। और माइल्ड क्राउडिंग है लोअर इंसाइजर्स में, ठीक है। प्राइमरी सेकंड मोलार्स लिवे स्पेस वो इनफ है। पेशेंट इज कंसर्न अबाउट फ्यूचर क्राउडिंग, ठीक है, माइल्ड क्राउडिंग है। क्राउडिंग कितना है वो यहाँ पे थोड़ा बाकी रह गया है, हमने बनाने की कोशिश की जल्दबाजी में पीडीएफ, तो थोड़ी दिक्कत हो गई है। What is the most evidence-based management strategy for this patient to utilize leeway space? तो देखो माइल्ड क्राउडिंग है और आपको लिवे स्पेस यूटिलाइज करना है, तो आप क्या करोगे, कौन सी मैकेनिज्म यूज करोगे लिवे स्पेस को यूटिलाइज करने के लिए, ठीक है। पहले में आप एक्सट्रैक्शन करोगे कैनाइंस का, दूसरे में लोअर लिंगुअल होल्डिंग आर्च करोगे ताकि आपको ई स्पेस रिजर्व कर दी जाए, तीसरे में रैपिड पैलेटल एक्सपांशन करोगे, या चौथे में इंटरप्रोक्सिमल रिडक्शन, कौन सी आप मेथड यूज करोगे। 3 में एक आंसर आया है ए, और कोई बी, बी बाकी सब लोग बी बता रहे हैं, तो इसका आंसर आएगा बी, सही है। आपको लोअर लिंगुअल होल्डिंग आर्च यू है ना, उसको होल्ड करने के लिए आपको वो अप्लायंस यूज करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑर्थोग्नेटिक सर्जरी के लिए है। 19 ईयर ओल्ड फीमेल है, स्केलेटल क्लास 3 रिलेशनशिप में है, मैंडिबल क्या है आगे है, और कॉन्केव प्रोफाइल इज प्लान्ड फॉर ए बायमैक्सिलरी सर्जरी, ठीक है। आपको बीएसएसओ सेटबैक करना है लीफोर्ट वन एडवांसमेंट के बाद। लीफोर्ट वन में क्या करोगे, मैक्सिला को आगे लागोगे और इससे पीछे ले जाओगे मैंडिबल को, दोनों करना है बायमैक्सिलरी सर्जरी 19 ईयर ओल्ड फीमेल में। अब ये बिफोर सर्जरी आपका प्राइमरी गोल क्या होना चाहिए डेंटल पोजीशंस के बारे में। ठीक है, पहला ये है कि लोअर इंसाइजर्स को लिंगुअली प्लेस कर दीजिए ताकि आप क्लास 3 जैसा कैमोफ्लेज कर सको। दूसरा, अपर इंसाइजर्स को प्रोक्लाइन कर सकते हो ताकि आपको पॉजिटिव ओवरजेट मिले। तीसरा, डिकम्पेंसेट करोगे इंसाइजर्स को, ठीक है, ताकि स्केलेटल डिस्क्रिपेंसी की मैग्नीट्यूड आपको पता चले। और चौथा, आप सारी स्पेसेस को क्लोज कर दोगे ताकि आप सेगमेंट वाला ऑस्टियोटॉमी कर सको। तो ये प्री सर्जिकल ऑर्थोडोंटिक फेज में आपका गोल क्या होना चाहिए। 4 में सी एक आंसर आया है, और कोई 7 ने क्विट कर दिया, सही बात है, मैं ये बार बार बता रहा हूँ, ये अटेम्प्ट करना भी एक इंटेलिजेंस है, माइनस होने से अच्छा है, जाने दीजिए। आंसर है सी, आपको इंसाइजर्स को डिकम्पेंसेट करना पड़ेगा ताकि आपको मैग्नीट्यूड पता चले, ठीक है, स्केलेटल डिस्क्रिपेंसी का। तो आपको क्या करना पड़ेगा, लोअर को प्रोक्लाइन करना है और रेट्रोक्लाइन करना है अपर को, ये चीज आपको करनी पड़ेगी प्री सर्जिकल में। अब बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं ये समझने के लिए टाइम नहीं, तो ये याद रखिए प्री सर्जिकल होता है कोई सर्जरी के पहले दांत को ऊपर वाले जो होते हैं वो अंदर लाना है और नीचे के दांत को बाहर लाना है, ठीक है। यहाँ पे प्रोक्लाइन लोअर, ठीक है, वो आपको याद रखना है, तो ऐसे आप क्लास 2 के लिए उल्टा भी सोच सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लियर एलाइनर बायोमैकेनिक्स, तो ये रिसेंट एडवांस के ऊपर है। पेशेंट इज बीइंग ट्रीटेड विथ क्लियर एलाइनर्स टू करेक्ट ए डीप बाइट।
क्लीन चेक shows relative intrusion of lower incisors. नीचे के दांत है incisors वो intrusion है. ठीक है. Now, which clinical feature is most critical to ensure the success of this movement? कौन सा क्लिनिकल फीचर आपको आपके सक्सेस के बारे में बताएगा? पावर रिज यूज करोगे. दूसरा ओरिजेंटल बेवल अटैचमेंट्स करोगे प्लेस एंकरेज के लिए. तीसरा है वेयर टाइम 10 कलाक कम करोगे. ठीक है अलाइनर्स का. और रेस्ट भी दोगे. और एडिंग ए लिंगुअल क्लेट फॉर इलास्टिक वेयर. ठीक है. फिफ्थ क्वेश्चन में आंसर क्या आएगा? बी और सी में कंफ्यूजन है. कुछ लोग बी बता रहे हैं, कुछ लोग सी बता रहे हैं. Your answer is B. You will place attachments on the adjacent premolars for anchorage. ठीक है anchorage आपको चाहिए उसमें. नेक्स्ट क्वेश्चन सिफलोमेट्रिक्स के ऊपर है. 14 ईयर ओल्ड फीमेल. ठीक है. SNA 82 है. SNB 74 है. यानी कि जो एंगल है बीच में ए एंड बी वो 8 है. और अप्रेजल जो है बीट का वो +1 है. ठीक है. द पेशेंट हैज नोटिसेबली कॉन्वेक्स प्रोफाइल. ठीक है कॉन्वेक्स प्रोफाइल है. बी वाला जो है नीचे मैंडिबल वाला वो आगे है. Now which of the following best explains the discrepancy between A and B angle और Witt's appraisal? ये दोनों अलग-अलग क्यों डिस्क्रिपेंसी में है? उसके लिए कौन सा थ्योरी एक्सेप्ट है और या कौन सी थ्योरी एक्सप्लेन करेगी? इसमें यह है कि मैक्सिला मोर रेट्रोग्नेथिक है एस द एसएनए सजेस्ट. ठीक है. नेजन पॉइंट पोजीशन मोर एंटीरियरली देन एवरेज और द प्लेन इज शॉर्ट. तीसरा ये है कि सिग्निफिकेंट वर्टिकल ग्रोथ पैटर्न है जो हमेशा इन्फ्लेट करता है वीट्स को. और ए एंड बी एक रिलायबल मेजरमेंट है वो एडोल्सन में इग्नोर करना चाहिए. ठीक है. ये थोड़े कंफ्यूजन वाले क्वेश्चन है आज. आपके हिसाब से आंसर देना है. 6 में एक आंसर आया है डी. यहाँ पे आंसर है बी. ठीक है. ये एंगल में और विट अप्रेजल में क्यों दिक्कत आ रही है कि जो नेजन पॉइंट है वो थोड़ा आगे है. ठीक है. इसलिए वो एंगल ज्यादा आपको दिख रहा है. तो यहाँ पे नेजन के बारे में क्रिटिक्स आपको देना पड़ेगा. ठीक है. और ये जो बोलेंगे नेजन आगे है उसको बोलेंगे सेफलोमेट्रिक ट्रैप वाला. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन. यू आर यूजिंग सुपर इलास्टिक. ठीक है. नाइट टाई जो प्रोटर में हम यूज करते हैं मटेरियल वो. ठीक है. शेप मेमोरी और सुपर इलास्टिसिटी दो उसकी प्रॉपर्टी होती है. अब इनिशियल अलाइनमेंट के लिए आपने यूज किया है वायर इज एक्टिव इट इज रिफ्लेक्टेड इनटू ए क्राउडेड ब्रैकेट. ठीक है. व्हाट यूनिक फिजिकल प्रॉपर्टी allows night eye to deliver a constant light force over a long period. ठीक है. तो कौन सी प्रॉपर्टी उसकी ऐसी है कि वो कांस्टेंट और लाइट फोर्स दे सके? तो ऐसे क्वेश्चंस आपको अच्छे लगेंगे. ये डायरेक्ट वाले हैं. कुछ ज्यादा सोचने का नहीं है. तो ये जब प्रो पेपर आपको पढ़ाया था एंडो में और तो मैम ने बताया था
ऑस्टेनाइट फेज और मार्टेनसाइट फेज से जो रिलेशनशिप है रिवर्सिबल रिवर्सिबल, उसमें ये प्रॉपर्टी आती है नाइट्राइट की। तो इसके आंसर आई में आएगा बी। ठीक है, स्ट्रेस इंड्यूस्ड मार्टेनसिक ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, ऑस्टेनाइट वो स्टेबल होते हैं हायर टेम्परेचर पर और लोअर स्ट्रेस पर। ठीक है, और मार्टेनसाइट होते हैं वो स्टेबल कब होता है, हायर स्ट्रेस पर। जितना स्ट्रेस दोगे उसमें ऑस्टेनाइट से मार्टेनसाइट में कन्वर्ट होगा। ठीक है, ये आपको एंडो में प्रोटेबर फाइल्स में भी हमने आपको पढ़ाया था लेक्चर के टाइम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्व ऑफ विल्सन, यू आर viewing the dental arch from the posterior. ठीक है, you notice the mandibular molars have a significant lingual tilt. ठीक है, आपने दांत को देखा तो मैंडिबुलर मोलर से वो ऐसे एक दूसरे के सामने टिल्ट है थोड़े, तो यहाँ पे कर्व बनेगी। तो विच इज दिस कर्व, और ये इसका एक्सपांशन क्या है। ठीक है, 8 में आंसर आ रहा है बी। इसका पहले से बता दिया था, विल्सन कर्व है नाम, कोई डिस्कशन करने वाली बात नहीं है। पी का और विल्सन का दोनों का कॉम्बिनेशन मॉनसॉन आएगा। ठीक है, 8 इंच वाला डायमीटर ग्लेबुला सेंटर। अ 7 year old male presents with a unilateral posterior crossbite. कल हमने आपको ये क्वेश्चन बताया था, यूनिलेटरल में क्रॉस बाइट है, पोस्टीरियर क्रॉस बाइट है, एंटीरियर क्रॉस बाइट है, कौन कौन से अप्लायंस है रिमूवेबल में, फिक्स्ड में, ये सब आपको याद होना चाहिए। On closing, mandible shifts to right and midline is deviated to right in maximum intercuspal position. In the initial contact position, the midlines are coincident. ठीक है, तो राइट शिफ्ट यहाँ पे हो रहा है, पोस्टीरियर क्रॉस बाइट है राइट साइड पर इसलिए। Now, what is the most appropriate diagnosis or treatment plan? 9th क्वेश्चन में आपको डायग्नोस भी करना है एज ए ऑर्थोडोंटिस्ट और ट्रीटमेंट भी करना है। तो यहाँ पे आंसर है बी। ठीक है, बायलेटरल मैक्सिलरी कंस्ट्रिक्शन है और फंक्शनल शिफ्ट हो रही है, आपको आरपीई से ट्रीट करना होगा। ठीक है, आरपीई दो टाइप का आता है, रैपिड और स्लो। स्लो टीथ वाला होता है, डेंटल वाला, और रैपिड होता है जो वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ पेशेंट हैज जस्ट कंप्लीटेड 24 months। ठीक है, 2 साल तक उसने ट्रीटमेंट पूरी की, फिक्स्ड अप्लायंस की, और सीवियर लोअर इंसाइजर क्राउडिंग था। यू आर डिबेटिंग बिटवीन ए फिक्स्ड लिंगुअल रिटेनर बॉन्डेड और रिमूवेबल। अब 2 साल ट्रीटमेंट के बाद आप कौन सा रिटेनर यूज करोगे। ठीक है, अब हमारी कोई स्टडी नहीं, लॉन्ग टर्म स्टडीज के हिसाब से कौन सा, यूनिवर्सिटी ऑफ वॉशिंगटन या लिटिल स्टडीज, उसके हिसाब से स्टेबिलिटी के मुताबिक, स्टेबिलिटी के ऊपर क्या सही बात है। स्टेबिलिटी के रिगार्डिंग क्या सही बात है इसमें से। क्वेश्चन भी लिखिए किरण जी।
10 में एक आंसर आया है डी, एक आंसर आया है बी। इसका आंसर है बी। ठीक है। The only way to guarantee the maintenance of lower incisor alignment long term is permanent retention। ठीक है। तो अभी ये गोल्डन रूल ले लो कि लोअर इंसाइजर का क्रेडोइन पेशेंट आता है तो आपको पहले बोल ही देना है कि भाई परमानेंट रिटेंशन आपको लेना पड़ेगा। ठीक है। बी इज द आंसर। और ये लिटिल की स्टडीज है। तो ये जीपीएससी में कैसा इजी क्वेश्चन आएगा? परमानेंट रिटेंशन फॉर लोअर इंसाइजर क्राउडिंग is suggested by which study? Little, more, less, ऐसे भी आपको क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बायोलॉजिकल टूथ मूवमेंट के ऊपर है। क्लिनिशियन अप्लाइज ए कंटिन्यूअस हेवी फोर्स। ठीक है। बहुत ज्यादा फोर्स दे रहा है क्लिनिशियन, उसको रुपये कमाने की जल्दी है, जल्दी से ऑर्थोडोंटिक टूथ मूवमेंट लाना है। टू रिट्रैक्ट ए मैक्सिलरी कैनाइन। ठीक है। मैक्सिलरी कैनाइन को पीछे लाना है। आफ्टर 48 आवर्स द टूथ हैज नॉट मूव्ड एंड पेशेंट को पेन होने लगा। तो ये हिस्टोलॉजी पर आपको कुछ फिनोमिनन दिखेगा। ठीक है। अब ये विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब्स द बायोलॉजिकल प्रोसेस occurring in PDL during these conditions? हेवी फोर्स आता है तो कौन सा बायोलॉजिकल प्रोसेस होगा? क्वेश्चन का नंबर भूल गए हो तो आपको मैं 11 लिख के देता हूँ। 11th क्वेश्चन है ये। एक आंसर आया है बी, दूसरा भी बी। ठीक है। सही बात है। वहां पे क्या होगा? जब भी हेवी फोर्स आता है स्टेराइल नेक्रोसिस हो जाएगा और हाइलिनेशन होगा, अंडरमाइनिंग रिजॉर्प्शन होगा। अभी मैं सारे जो भी स्टूडेंट्स लाइव देख रहे हैं, कोई बात नहीं, आपका आंसर सही होता है गलत होता है वो सब छोड़िए। ये जितने भी एक्सप्लेनेशन है ना वो कर दोगे तो भी आपके ऑर्थो में सब क्वेश्चन सही हो जाएंगे। सारे क्वेश्चंस के खाली आपको ये एक्सप्लेनेशन 1 या 2 दिन में कर देना है। ठीक है। हम वापस कल से ब्रेक है, हम मंडे को शायद जुड़ेंगे। ठीक है। तो तब उस दिन हम ऑर्थो, पीडो, प्रोस्तो और ओएस सारों के मतलब सारे सब्जेक्ट के 100 क्वेश्चंस पूछेंगे, 25-25 ईच। ठीक है। तो ऐसे आपकी मॉक की प्रैक्टिस हो जाएगी। तो तब तक जितने भी ये पीडीएफ हमने आपको दिया है इसके सारे एक्सप्लेनेशन आपको याद कर लेने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 ईयर ओल्ड, क्वेश्चन नंबर 12। 13 ईयर ओल्ड फीमेल, उसमें पैलेटली इंपैक्टेड मैक्सिलरी राइट कैनाइन है। एपेक्स नॉर्मल पोजीशन है लेकिन क्राउन डिस्प्लेस्ड है मीडियली। ठीक है। ओवरलैपिंग द मिड रूट ऑफ लेटरल इंसाइजर, एपेक्स सही जगह पर है। अब जो सेक्टर का एनालिसिस है किसने दिया है? एरिक्सन और कुरोल। अब हमारे एग्जाम में बहुत सारे इजी क्वेश्चंस भी आए थे, यही क्वेश्चन आए, ऐसे क्वेश्चन आते थे। सेक्टर एनालिसिस इज गिवन बाय, तो हमने तो पहली बार सुना होगा, आपने भी पहली बार सुना, तो आपको ये साइंटिस्ट के नाम भी याद रखने हैं। ठीक है। सेक्टर एनालिसिस किसने दिया है? तो एरिक्सन और कुरोल ने। व्हाट इज द मोस्ट सिग्निफिकेंट रिस्क एसोसिएटेड विद दिस इम्पैक्शन? ठीक है। ऐसा इम्पैक्शन होता है तो सेक्टर एनालिसिस के हिसाब से कौन सा मैक्सिमम रिस्क है? 12th क्वेश्चन। बढ़िया। एक आंसर आया है ई, और कोई आंसर?
एक आंसर आया है बी, इसका आंसर आएगा बी। ठीक है, रूट रिजॉर्प्शन ऑफ एडजेसेंट लेटरल इंसाइजर, दैट इज द मैक्सिमम रिस्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेम्पररी एंकरेज डिवाइस, उसका शॉर्ट फॉर्म अभी आएगा टीएडी। ठीक है, आप टीएडी मिनी स्क्रू यूज कर रहे हो zygomatic alveolar ridge में टू डिस्टलाइज द एंटायर मैक्सिलरी आर्च। ठीक है, क्लास 2 पेशेंट है, यानी कि मैंडिबल थोड़ा छोटा है, तो आपको मैक्सिला को डिस्टलाइज करना है। मैक्सिला को डिस्टलाइज करने के लिए टीएडी आपने मिनी स्क्रू यूज किया है zygomatic alveolar ridge पर। ठीक है, the screw is placed in the alveolar bond between the first and second molars. So what is the primary difference between TAD anchorage and absolute dental anchorage provided by an ankylosed teeth? TAD का एंकरेज और एब्सोल्यूट डेंटल एंकरेज, ठीक है, उसके दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है? ठीक है, क्वेश्चन ऑप्शन ए, प्राइमरी स्टेबिलिटी टीएडी एग्जिबिट करता है। ठीक है, टीएडी 1 to 2 मिलीमीटर इन द फोर्स ऑफ डायरेक्शन में जाता है। ठीक है, टीएडीज प्रोवाइड स्टेशनरी एंकरेज और टीएडीज स्टेबल होते हैं इंटरमिटेंट फोर्सेस में। टीएडीज के बारे में और वो एंकलोस टूथ पर आप एंकरेज करोगे उसमें क्या डिफरेंस है? TADs are only stable under intermittent force, stationary anchorage 1 to 2 मिलीमीटर या प्राइमरी स्टेबिलिटी। ये क्वेश्चन है 13th क्वेश्चन में क्या आंसर आएगा? एक आंसर आया है सी, दो आंसर है सी। ठीक है, सही बात है, टीएडी यानी कि स्टेशनरी एंकरेज, वो आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ 45 ईयर ओल्ड मेल, ठीक है, with a history of treated periodontitis, now stable, presents with pathologic tooth migration. Pathologic tooth migration यानी कि कुछ पैथोलॉजी होगी। His maxillary incisors are flared and have developed diastemas. ठीक है, अगली डगलिंग स्टेज जैसा कुछ हो गया है। तो इस कंडीशन में विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट क्रिटिकल रिक्वायरमेंट बिफोर बिगिनिंग ऑर्थो ट्रीटमेंट? आपको ऑर्थो ट्रीटमेंट से पहले आपको क्या रिक्वायरमेंट जरूरी है? क्वेश्चन नंबर है 14, आंसर है बी, सही है। यू हैव टू एलिमिनेट ऑल द पैथोलॉजी, ठीक है, आपको सब प्लाक पैथोलॉजी सब निकाल देने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑर्थोडोंटिक मटेरियल इलास्टिक्स के ऊपर है। पेशेंट इज इंस्ट्रक्टेड टू वेयर क्लास 2 इलास्टिक्स फ्रॉम द लोअर फर्स्ट मोलर्स टू अपर कैनाइंस। ठीक है, ये कौन सा है एंकरेज हुआ? इंटर मैक्सिलरी। ठीक है, अब क्लास 2 इलास्टिक्स का क्या इफेक्ट होता है, साइड इफेक्ट वो बताइए। एक आ गया कि प्रोक्लिनेशन ऑफ लोअर इंसाइजर्स, दूसरा रिट्रूजन ऑफ लोअर इंसाइजर्स, तीसरा इंट्रूसिव फोर्स, चौथा है कंस्ट्रक्शन ऑफ मैंडिबुलर आर्च विड्थ।
क्वेश्चन नंबर है 15, आंसर है ए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन वर्टिकल माल ऑक्लूशंस के ऊपर है। 15-year-old मेल प्रेजेंस विथ सीवियर एंटीरियर ओपन बाइट। ठीक है, यहाँ पे हमने थोड़ी गलती की है, वो एग्जैक्ट लिखा नहीं है। अ स्टीप मैंडिबुलर प्लेन एंगल और इंक्रीज्ड लोअर एंटीरियर फेशियल height. He has a gummy smile in the posterior segments but not the anterior. Which of the following biomechanical strategies is the most appropriate for correcting this skeletal open bite? ठीक है, डेंटल की नहीं है, skeletal open bite है। अब कौन सा बायोमेकेनिक्स आप यूज करोगे इसमें? क्वेश्चन नंबर है 16, कौन सा बायोमेकेनिकल स्ट्रेटजी यहाँ पे अप्रोप्रिएट है? एक आंसर आया है बी, और कोई आंसर? लोग बोल रहे हैं कि लेक्चर में दिखता नहीं, हमको तो दिखता है। ऐसा कुछ है दिखता नहीं लेक्चर में? जो भी लोगों को दिक्कत है वो बताइए, कमेंट ही लिखिए ना। लेक्चर विजिबल। ओके, क्रीमा जी को दिख रहा है, सावन को नहीं दिख रहा है। ऐसा तो होता नहीं है कभी। तो जिसको नहीं देख रहा है अभी वो नो लिखिए फिर से। ओके, विजिबल है तो राठवा किरण को क्यों नहीं दिख रहा है? चलो मैं लेटेस्ट थोड़ा यहाँ भी क्वेश्चन है वो लिख लेता हूँ, लेटेस्ट वाला। दिख रहा है लेक्चर। चलो ये हिंदी वाला आपको दिख रहा है, वो मुझे बताइए खाली। ओके, कोई बात नहीं किरण जी, आपके नेटवर्क में कोई दिक्कत होगा, हम आगे बढ़ेंगे, टाइम मत बिगाड़ो हमारा। चलो, इसका आंसर है बी, इंट्रूजन ऑफ मैक्सिलरी पोस्टीरियर सेगमेंट्स। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17, 35-year-old फीमेल पेशेंट अंडरगोइंग ऑर्थो ट्रीटमेंट। ठीक है, 35 की एज पर ऑर्थो ट्रीटमेंट करवाने जा रहे हैं। उनको मलाइका अरोरा की तरह एस्थेटिक्स चाहिए, 35 उम्र है इसलिए। ठीक है। अंडरगोइंग ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट फॉर क्राउडिंग, ऑल्सो सफर्स फ्रॉम क्रॉनिक रूमेटॉइड आर्थराइटिस। ठीक है, यानी कि प्रॉब्लम है। शी frequently takes high dose ibuprofen, brufen, and NSAID for pain मैनेजमेंट। अब ये आर्थराइटिस वाला प्रॉब्लम है, यानी कि कैल्शियम का लेवल, जॉइंट का लेवल, बोन का लेवल, वो कुछ दिक्कत होगा, और एनसेड्स भी ले रहे हैं। तो ये क्या दिक्कत करेगा? प्रोस्टाग्लैंडिन बी, ब्रूफेन कहाँ एक्ट करता है, उसके हिसाब से क्वेश्चन आपको आंसर देना है। 17 का आंसर। क्वेश्चन भी लिखिए थोड़ा। 17 में आंसर सी, एक आंसर डी। ठीक है, इसका आंसर है सी। मैंने बताया था एनसेड्स होते हैं ना, उसकी मेन मैकेनिज्म यही होती है। प्रोस्टाग्लैंडिन है ना, वो उसको अटकाते हैं। ठीक है, अब ये फार्मेक का लेक्चर
लिया होगा हमने, तो फार्मेक ने हमने पढ़ाया था प्रोस्टाग्लैंडिन सिंथेसिस उसको अटकाते हैं, ठीक है। इट प्रिवेंट्स प्रोस्टाग्लैंडिन सिंथेसिस, सो इट विल स्लो डाउन टूथ मूवमेंट। अब यही पैटर्न के आपकी क्वेश्चंस, आपकी एग्जाम में ये क्वेश्चंस आएंगे। थर्ड, लिंकिंग करवाते हैं, कहाँ एनसेड्स है, कहाँ ऑर्थोडोंटिक्स है, ठीक है। तो ये दोनों के बीच का जो पॉइंट है वो प्रोस्टाग्लैंडिन सिंथेसिस, वो इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे पास ये रोज आते हैं ऐसे पेशेंट एज एस्टिमेशन के लिए। यू आर चेकिंग ए हैंड रिस्ट फिल्म टू सी ए पेशेंट इज फिनिश्ड विथ ग्रोथ फॉर सर्जरी। अब क्या बताता है कि स्केलेटल ग्रोथ कंप्लीट है, ठीक है। हमारी जो जॉब है आरएमओ की, उसमें स्पॉट्स में जो भी बच्चे जाते हैं ना, वहाँ पे एज एस्टिमेशन के पेशेंट आते हैं। तो हम तो नहीं करते, हम रेडियोलॉजिस्ट के पास भेज देते हैं, वो चेक करके एज एस्टिमेट करके देते हैं। हम खाली डेंटल की एज एस्टिमेशन करते हैं डिपेंडिंग अपॉन द टूथ प्रेजेंट। व्हाट स्पेसिफिक साइन इंडिकेट्स दैट स्केलेटल ग्रोथ इज कंप्लीट। एक आ गया फ्यूजन और एपिफिसिस और डायफिसिस, ठीक है। वो आंसर आया है तो वही सही है, ठीक है, फ्यूजन होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, you are leveling a deep mandibular curve P in an adolescent patient using a continuous arch wire, ठीक है। What is the most likely reciprocal effect of the mandibular arch during this leveling process? रेसिप्रोकल इफेक्ट क्या आएगा आपने जब लेवल करने की कोशिश की, ठीक है, कंटिन्यूअस आर्च वायर से। क्वेश्चन नंबर 19, आंसर है सी और बी। इसका आंसर है ए, मैंडिबुलर इंसाइजेस विल प्रोक्लाइन एंड आर्च लेंथ विल इंक्रीज, ठीक है। जब आप लेवलिंग करना चाहोगे तो मैंडिबुलर वाले प्रोक्लाइन हो जाएंगे और आर्च लेंथ उसकी बढ़ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, यू आर इन द फाइनल स्टेज ऑफ द ट्रीटमेंट, ठीक है। कौन सी ट्रीटमेंट? ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट। You notice that maxillary lateral incisor is 1 millimeter too gingival compared to the central incisor and the root needs more distal inclination, ठीक है। lateral incisor को आपको distally inclined जरूरत है। तो which order of bends are you performing? अब ये क्वेश्चन हर एक एग्जाम में आता है, मेरी नीट एमडीएस में भी आया था, जितनी भी जीपीएससी एग्जाम दी मैंने, ये रिपीटेड क्वेश्चन आता है, ठीक है। Which order of bends you are performing when you adjust the wire for these two issues? अब ये क्वेश्चन ऐसा नहीं कि रिपीट सेम वर्डिंग्स वाला आएगा, ऑर्डर वाला कुछ आता है, ऑर्डर बैंड, फर्स्ट ऑर्डर बैंड, सेकंड ऑर्डर बैंड, ये सब आपको आपके एग्जाम में दिखेगा क्वेश्चन, तब आपको याद करना है कि सर ने पहले से ही ट्रेन करवा दिया है। ट्वेंटी में एक आंसर आया है बी। यहाँ पे आंसर है डी, खाली सेकंड ऑर्डर आपको ही परफॉर्म करना पड़ेगा, ठीक है। सेकेंड ऑर्डर का नाम है आर्टिस्टिक और स्टेप बैंड, ठीक है। सेकेंड, फिर स्टेप भी लिख लो, वही है इसके साथ, और ये आपने की वो आर्टिस्टिक,
अप्रोच किया। ऐसे आपको शॉर्टकट में याद रखना है। ठीक है, तो हाइट और टिल्ट वो दोनों सेकेंड ऑर्डर के मूवमेंट्स हैं। नाउ नेक्स्ट, तो यहाँ भी देख लो, फर्स्ट ऑर्डर में इन आउट है, थर्ड ऑर्डर में टॉर्क है। ठीक है, नेक्स्ट, एक्टोपिक इरप्शन ऑफ फर्स्ट मोलर्स, उसके ऊपर क्वेश्चन है ये। 7 year old child presents with maxillary permanent right first molar। ठीक है, caught under the distal hump of primary second molar, ये हमने कल क्वेश्चन किया हुआ है। ठीक है, आपको शायद याद हो कि ना हो, कल हमने एक क्वेश्चन किया हुआ था, उसके सर्वाइकल रीजन में वो लॉक हो चुका है, डिस्टल रूट भी रिजॉर्प्शन हो चुका है, मोलर 3 mm सबमर्ज्ड है। व्हाट इज द अप्रोप्रिएट इनिशियल मैनेजमेंट ऑफ रिवर्सल टाइप ऑफ एक्टोपिक इरप्शन? इसका आंसर आएगा, आपको 6 महीने तक वेट एंड वॉच करना है। ठीक है, क्योंकि वो सेल्फ करेक्टिंग एनोमलीज है, एक्टोपिक इरप्शन का केस, और वो स्टडी है यंग की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 22, इम्पैक्टेड मैक्सिलरी कैनाइन लेबियल और पैलेटल के बीच ये थोड़ा कंफ्यूजिंग वाला क्वेश्चन है। यू आर कंपेयरिंग टू पेशेंट्स, दो पेशेंट्स को आप कंपेयर कर रहे हो, वन विथ लेबियली इम्पैक्टेड और एक पैलेटली इम्पैक्टेड। ठीक है, दो टाइप के पेशेंट्स है। व्हाट इज द प्राइमरी डिफरेंस इन द टिपिकल इटियोलॉजी? ये एनाटॉमी का क्वेश्चन है। 22nd में क्या आंसर आएगा? एक आंसर आया है ए, कोई आंसर आया है सी। ठीक है, यहाँ पे आंसर है ए। लेबल इम्पेक्शंस आर यूजुअली ड्यू टू क्राउडिंग, और पैरेटल होते हैं वो गाइडेंस से या जेनेटिक्स के हिसाब से होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, a patient underwent orthognathic surgery to correct a mandibular deficiency। ठीक है, बायलेटरल सजाइटल स्प्लिट ऑस्टियोटॉमी से मैंडिबल को आगे पुश किया। नाउ अकॉर्डिंग टू प्रॉफिट हायरार्की ऑफ स्टेबिलिटी, which of the following surgical movements is considered the most stable? ठीक है, बीएसएसओ एडवांसमेंट से मैंडिबल आप आगे लाओगे तो कौन सा सर्जिकल मूवमेंट मोस्ट स्टेबल है? क्वेश्चन नंबर 23, 23 में क्या आंसर आएगा? एक आंसर आया है बी। ठीक है, यहाँ पे आंसर है सी, मैक्सिलरी एडवांसमेंट जो है क्लास 3 वो ही मोस्ट स्टेबल है अकॉर्डिंग टू प्रॉफिट। ठीक है, मैं नहीं बता रहा हूँ, प्रॉफिट ही बता रहे हैं, उसमें लिफोर्ट वन की ऑस्टियोटॉमी के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, you are using a sliding mechanics approach to close extraction space on a stainless steel wire in a slot. You notice the space is not closing despite the force। ठीक है, आप कितना भी फोर्स कर रहे हो स्पेस क्लोजर नहीं हो रहा है। What is the most likely mechanical reason for this lack of movement? क्या गलती हो रही है इसमें?
Question number 24. 24 में क्या आंसर आएगा? एक आंसर आया है ए, ठीक है। यहाँ पे आंसर है सी, वायर इज टू थिन causing it to flex and bind in the bracket, ठीक है। वायर यहाँ पे बहुत ही छोटा है, ठीक है, थिन है, छोटा तो नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन रूट रिजॉर्प्शन के ऊपर है। आफ्टर 12 months of treatment, a routine panoramic radiograph shows blunting of maxillary central incisor roots, grade 2 root resorption है, ठीक है। What is the most appropriate clinical action? आपने देखा कि रूट रिजॉर्प्शन हो चुका है, तो कौन सी क्लिनिकल एक्शन आप करोगे? क्वेश्चन नंबर 25। सी आंसर आएगा, वो तो यहाँ थोड़ा दिख रहा है, पता नहीं आपके वहां दिख रहा है कि नहीं, इसलिए सब लोगों ने सी आंसर पिक किया होगा। एक्टिव ट्रीटमेंट आपको अटकानी है, ठीक है, और पीडीएल को रीऑर्गेनाइज होने के लिए टाइम देना है। संडे बाइट, ये भी क्वेश्चन बहुत बार नीट एमडीएस में आता था। A child with class 2 malocclusion habitually protrudes their mandible to make their profile look better, ठीक है। क्लास 2 वाला बच्चा होता है, वो अपना मुंह बार बार आगे लाता है, तो क्लिनिकल टर्म क्या है और ये डायग्नोस्टिक कंसर्न क्यों है? 26 क्वेश्चन है, इसका आंसर तो पहले ही पता हो गया आपको, संडे बाइट की बात कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, a patient has posterior crossbite. When you ask the patient to open wide and then close slowly, you observe that maxillary arch is narrower than the mandibular arch, ठीक है, तो skeletal वाला डिफेक्ट है। But the patient shifts their jaw to the left to get to the feet. अब आपको ये कैसे पता चला कि skeletal और dental है? क्या क्राइटेरिया से पता चला, ये आपको आंसर देना है। क्वेश्चन नंबर 27। 27। एक आंसर है सी, दूसरा है ए। यहाँ पे आंसर है ए, इफ द मिडलाइंस आर कोइंसिडेंट इन द ओपन पोजीशन बट डिविएट ऑन क्लोजिंग, ठीक है। जब क्लोजिंग के टाइम डिविएट होता है तो वो स्केलेटली कंस्ट्रिक्टेड मैक्सिला है, तो आपको ये याद रख लेना है, ठीक है। मैंने बहुत सारे बच्चों को ये टेक्निक दी थी कि जब डिविएशन ऑन क्लोजिंग तो कंस्ट्रिक्टेड मैक्सिला है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो ऐसे कोई क्वेश्चन आता है तो वही टिक आपको करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
यू प्रिस्क्राइब सर्वाइकल पुल, ठीक है, क्लॉ एंड हेड गैप। ये तो मैंने भी देखा नहीं कैसा होता है क्लॉ एंड हेड गैप। टू ए क्लास 2 पेशेंट विद लो मैंडिबुलर प्लेन एंगल, शॉर्ट फेस वाले में, ठीक है। व्हाट इज द एक्सपेक्टेड वर्टिकल इफेक्ट ऑफ दिस स्पेसिफिक अप्लायंस? क्या वर्टिकल इफेक्ट आपको मिलेगा? क्वेश्चन नंबर 28। इसका आंसर है बी, इट विल एक्सट्रूड, ठीक है, मैक्सिलरी मोलर्स को एक्सट्रूड करेंगे और पोटेंशियली ओपन द बाइट, ठीक है, उसका एक साइड इफेक्ट है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन हैंड रिस्ट रेडियोग्राफ्स के ऊपर है। अ क्लिनिशियन इज लुकिंग, मतलब वो तो देखेगा ही ना हैंड रिस्ट फील, टू डिटरमाइन इफ द पेशेंट इज रेडी फॉर ए फंक्शनल अप्लायंस। दे नोटिस द सेसमोइड बॉन्ड, ठीक है, उसका अपीयरेंस देख रहे हैं थंब का। What is the appearance of sesamoid bone signify in relation to pubertal growth spurt? ठीक है, sesamoid bone से क्या आपको पता चलेगा? अपीयरेंस वो दिखा आपको तो आपको उससे क्या पता चलेगा? 29th क्वेश्चन। सी एक आंसर आया है, और कोई? यहाँ पे आंसर है बी, स्पर्ट इमिनेंट है, यानी कि एक्टिव है और जस्ट स्टार्टेड है, ठीक है, दैट इज द sesamoid appearance significance, ठीक है। और यही टाइम पर आप फंक्शनल अप्लायंस हॉटस्पॉट ट्विन ब्लॉक स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। सिस्टमोइड बॉन्ड हर्ब्स ट्विन ब्लॉक अप्लायंस चालू करने का टाइम, क्योंकि ग्रोथ स्पर्ट यहाँ पे एक्टिव होता है, इमिनेंट होता है और स्टार्ट होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अ 14-year-old patient has a mandibular second molar that is mesially impacted against the first molar, ठीक है। The third molar is present and developing. What is the most common etiology for this impaction? 14-year-old mandibular second molar है वो impacted है first molar पे. Now third molar is present and developing. तो ये कंडीशन में क्या दिक्कत है? क्वेश्चन नंबर 30। 30 में एक आंसर आया है बी, ठीक है, सही बात है, उसको स्पेस नहीं मिल रही, शॉर्ट मैंडिबुलर आर्च थी, लेकिन स्टीप रेमस था इसलिए थर्ड मोलर को जगह मिल गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, Tanaka Johnston space analysis. 9-year-old patient
इन द मिक्स्ड डेंटिशन एज ए मैंडिबुलर आर्च विद द फॉलोइंग मेजरमेंट्स। ठीक है, यहाँ पे मेजरमेंट दिया नहीं है तो उसको जाने दो, इस क्वेश्चन को आप अपने हिसाब से ट्राई कीजिए। अकॉर्डिंग टू तनाका जॉनस्टन फॉर्मूला, व्हाट इज द प्रिडिक्टेड विड्थ ऑफ unerupted mandibular canine and premolars in one quadrant? ठीक है, ये एनालिसिस या फॉर्मूला होता है, तो कितनी प्रिडिक्टेड विड्थ होनी चाहिए अनइरप्टेड मैंडिबुलर कैनाइन और प्रीमोलर्स एक क्वाड्रेंट में। तो आपको ये पता ही नहीं लोअर इंसाइजर्स, तो आप कैसे पता करोगे? ठीक है, यहाँ पे आंसर आएगा बी। ठीक है, ये आप अपनी तरफ से वो सॉल्व थोड़ा कर लेना है। नेक्स्ट है 32 क्रेनियोफेशियल सिंड्रोम्स। आपको सिंड्रोम की पीडीएफ आपके पास होगी, नहीं होगा तो मुझे व्हाट्सएप करना है, मेरे पास एक पीडीएफ है, क्योंकि 1 साल से पढ़ा रहे, बहुत बार लोगों को भेजा है, अब बार बार आपके पास होगी नहीं होगी, सारे सिंड्रोम्स याद होने चाहिए। अब ये कौन सा सिंड्रोम है? सिंड्रोम के 2-3 क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आएंगे। A newborn presents with bird face appearance characterized by severe mandibular hypoplasia, cleft है, hypoplasia है, टंग डिस्प्लेस्ड है पीछे। हमने कल ये डिस्कस किया था इसका क्रिटिकल बेस्ड एयरवे आपको सिक्योर करना है, ये वाला क्वेश्चन था। ये कौन सा सिंड्रोम है 32 में? 32 में ऑप्शन है बी। ठीक है, यहाँ पे सी है, पियर रॉबिन सीक्वेंस सिंड्रोम है ये, और वो सिंड्रोम भी नहीं, सीक्वेंस उसको बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेंटर ऑफ रोटेशन और सेंटर ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक है, व्हाट इज द टर्म? या ए फोर्स इज अप्लाइड टू ए टूथ and counter movement is provided by the arch wire. The resulting movement shows the tooth rotating. ठीक है, tooth rotate हो रहा है around a point located exactly at the incisal edge. ठीक है, तो ये what is the term for this type of movement and what is the position of center of resistance? ठीक है, इस टर्म को आप क्या बोलोगे? 33rd क्वेश्चन। इसका आंसर है सी। रूट मूवमेंट के लिए टॉर्क आपको देना पड़ेगा, और सी रोटेशन, सेंटर ऑफ रोटेशन एट द इंसाइजल एज। ठीक है, टॉर्क वाला मोशन आएगा रूट को मूवमेंट करने के लिए, और यहाँ पे मोमेंट टू फोर्स रेशियो भी हाई होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनवेलप ऑफ डिस्क्रिपेंसी। A 25-year-old male has a skeletal class 2 discrepancy. He wants most stable and aesthetic result possible. According to Profit's envelope of discrepancy, why is the orthodontic surgery the preferred treatment over orthodontic camouflage in this case? किचन में खाना बन रहा है, थोड़ी आवाज को इग्नोर करना है, मुझे भी भूख लगी है, 12 साढ़े 12 को खाएंगे। A 25-year-old male, फिर से दोहरा रहे, skeletal class 2 discrepancy है, उसको अच्छे से अच्छा रिजल्ट चाहिए। According to Profit, why is orthodontic surgery
preferred treatment over orthodontic camouflage in this case? ठीक है. Option A, camouflage can only move lower incisors. The limit for stable mandibular dental forward movement is roughly this much, not given here. Exceeding this risk periodontal dehiscence. Surgery is always preferred for any discrepancy, or adults cannot have their teeth moved more than this per year. ठीक है, तो ये क्वेश्चन में आपको क्या आंसर लग रहा है? क्वेश्चन नंबर 34. आंसर्स आर बी. ठीक है, तो ये एक ऑप्शन वो भी था, लंबा था, इसलिए लॉन्गेस्ट ऑप्शन को टिक करना है. ये ट्रिक आपको काम आएगी. ठीक है, हमारा ट्रेडमार्क है ऐसी ट्रिक्स बनाने का. नेक्स्ट क्वेश्चन. 2 वीक्स, 2 वीक के बाद क्या करने के बाद आपने नाइट आई अलाइनिंग वायर्स प्लेस किए. पेशेंट रिटर्न्स विद जनरलाइज जिंजाइवल स्वेलिंग. आपने ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट चालू की तो जिंजाइवा में स्वेलिंग हो गई, रेडनेस हो गया, टंग में दिक्कत, लेकिन ओरल हाइजीन बढ़िया है. ठीक है, तो ये केस में क्या हुआ होगा? आपको माउथ वॉश देना है ये केस में. नाइट आई वायर को स्टेनलेस स्टील या टीएमए से रिप्लेस करना है. जिंजाइवेक्टोमी के लिए पेशेंट को मोटिवेट करना है और पेशेंट को बोलना है कि ये नॉर्मल है, कभी कभार ऐसा हो जाता है, हम तो अपनी भूल स्वीकारते नहीं. 35 में क्या आंसर आएगा? ओरल हाइजीन बढ़िया है. इसमें सब लोग बी बता रहे हैं. 35 में देखते हैं. सही है, आपको ये जो एलर्जी है निकेल की, उसके कारण ये हुआ है, तो आपको रिप्लेस कर देना है. 36 क्वेश्चन. A 30-year-old female presents with narrow maxillary arch and bilateral posterior crossbite. ठीक है, posterior crossbite है लेकिन bilateral है. The clinician attempts expansion using a traditional hyrax. टूथ बोन वाला है, यानी कि स्लो करेंगे. ठीक है, expansion. What is the most likely outcome of this treatment in a non-growing adult? ग्रो नहीं कर रहा है एडल्ट और आपने स्लो वाला एक्सपांशन यूज किया है, तो क्या आउटकम हो सकता है? 36 में आंसर बी आया है. तन्मय जी कहाँ खो गए, आंसर नहीं दे रहे. बी इज द आंसर. सिग्निफिकेंट बकल टिपिंग देखने को मिलेगा और एल्वेलर डेhiscence आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि नॉन ग्रोइंग है और आपने स्लो वाला यूज किया है. तो अभी इसमें क्या करना चाहिए? तो सार पे सर्जिकली असिस्टेड या मार पे मिनी स्क्रू असिस्टेड आपको एक्सपेंशन करना पड़ेगा.
Question number 37. In the late mixed dentition, leeway space is utilized by permanent first molars. वो तो सही बात है. What is the typical direction of molar movement when the primary second molars are lost? ये चला गया है तो 6 कैसे मूवमेंट वो करेगा और फाइनल मोलर ऑक्लूजन में वो कैसे इफेक्ट करेगा. ऑप्शन है ए बी सी डी. ए में मैक्सिलरी मोलर्स इजीली मूव करेंगे. बी में मोलर्स मूव डिस्टली. सी में मैक्सिलरी मोलर्स मूव इजीली या मैंडिबुलर मोलर्स डिस्टली. डी में ओनली मैंडिबुलर मोलर्स मूव शिफ्टिंग द रिलेशन फ्रॉम क्लास 2 to class 1. 37 में एक आंसर आया है ए. यहाँ पे आंसर है ए. सही बात है. ठीक है. मैक्सिलरी मोलर्स इजीली मूव करेंगे और मैंडिबुलर मोलर्स भी इजीली मूव करेंगे. तब जाके लीवे स्पेस को यूटिलाइज वो करेंगे. स्पेस कंपेंसेट करेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन. A patient asks why their friend's teeth moved much faster than theirs. उसके दांत क्यों सही तरह से मूव हुए. Which biological factor is most directly correlated with an increased rate of orthodontic tooth movement? ठीक है. जल्दी से ऑर्थोडोंटिक टूथ मूवमेंट करना है तो कौन सा बायोलॉजिकल फैक्टर होना चाहिए. पहला है हाइट बॉन्ड डेंसिटी. दूसरा है इंटरल्यूकिन 1. तीसरा है आरएपी और चौथा है यूज ऑफ हेवी कंटिन्यूअस फोर्सेस. सब लोग सी बता रहे. सही है. आरएपी आपको बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स होना चाहिए. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन 39. A patient is wearing a Herbst appliance to correct a class 2 malocclusion. Which of the following is a well documented dental side effect? Herbst appliance यूज करोगे तो दांतों में क्या साइड इफेक्ट देखने को मिलेगा. 39 में एक आंसर आया है बी. कोई बात नहीं डॉक्टर तन्मय. ई आप करते रहिए. 39 में आंसर आएगा बी. प्रोक्लेनेशन ऑफ मैंडिबुलर इंसाइजर्स. तो हर्ब्स्ट वो क्या करेगा. लोअर इंसाइजर्स को प्रोक्लाइंड करेगा. उसका एक कॉमन साइड इफेक्ट है. A patient's lower incisors have crowded 3 years after treatment. ठीक है. The intercanine width was expanded by 3 millimeter. जब ट्रीटमेंट की तब 3 millimeter एक्सपांशन हमने किया था. क्या इंटरकेनाइन विड्थ को. व्हाट इज द प्राइमरी कॉज फॉर दिस रिलैप्स. तो रिलैप्स क्यों हो गई. वापस क्राउडिंग क्यों हो चुका है. रिलैप्स का रीजन क्या है.
40 में बी आंसर है। सही है, न्यूट्रल जोन आपने वायलेट किया था, इसलिए वो चली गई विड्थ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 41। A 16-year-old female presents with skeletal anterior open bite and a high mandibular plane angle। ठीक है, आगे ओपन बाइट है और प्लेन एंगल मैंडिबल का हाई है। द क्लिनिशियन डिसाइड्स टू यूज पोस्टीरियर बाइट ब्लॉक्स। अब व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ यूजिंग ए पोस्टीरियर बाइट ब्लॉक? तो ये यहाँ पे बायोमैकेनिकल वर्ड इंपॉर्टेंट है। तो आपके आंसर में बायोलॉजिकल इफेक्ट और मैकेनिकल दोनों इफेक्ट आनी चाहिए, ऐसा कोई आंसर ढूंढिए। क्वेश्चन नंबर 41। तो ये लॉन्गेस्ट ऑप्शन वाला है वो आएगा। ठीक है, ये बायोलॉजिकल है और ये मैकेनिकल वाला इफेक्ट है। ठीक है, तो ऐसे भी आप एमसीक्यू स्ट्रेटेजी अपना सकते हो। वर्ड्स के ऊपर से आपको हिंट मिल जाएगी। ठीक है, कभी कभार तो बहुत पेशेंट की सीरियस बताएंगे कंडीशन, और उसका आंसर क्या होगा? इंसिजन ड्रेनेज या डू नथिंग, वेट एंड वॉच, ये सब उसके आंसर्स आएंगे। यू आर प्लानिंग ट्रीटमेंट फॉर 4 डिफरेंट पेशेंट्स। ठीक है, रूट रिजॉर्प्शन के ऊपर क्वेश्चन है। Which of the following patients is statistically at the highest risk for significant apical root resorption? कौन से पेशेंट में चांस है कि रूट रिजॉर्प्शन होगा? ऑप्शन डी भी है, तो यहाँ पे आंसर आएगा ए, पेशेंट विथ ए ब्लंट और पिपेट शेप्ड रूट्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 43। A 11-year-old patient presents with a permanent maxillary canine erupting between first and second प्रीमोलर्स। ठीक है, कैनाइन जो है वो थ्री और थ्री है जो 4 और 5 के बीच इरप्ट हो रहा है। व्हाट इज द मोस्ट कॉमन टूथ ट्रांसपोजिशन इन द मैक्सिलरी आर्च? ठीक है, ट्रांसपोजिशन के कौन से किस्से या मोस्ट कॉमन होते हैं? फोर्थ ऑप्शन नहीं दिख रहा है, कोई बात नहीं, माफ कीजिए, 43 का आंसर अभी दीजिए। 11 ईयर मतलब एन 11 ईयर ओल्ड पेशेंट। अब ये कौन सा मोस्ट ट्रांसपोजिशन वाला केस है 43? यहाँ पे आंसर आएगा बी, मैक्सिलरी कैनाइन, यानी कि 34 में मोस्ट कॉमन ट्रांसपोजिशन होता है। हमने ऐसे याद रख, रखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन। अ पेशेंट इज यूजिंग लेटेक्स elastics for class 2 correction. They are instructed to change the elastics only once every 24 hours. What is the primary concern in this instruction regarding force decay? Latex elastics for class 2 correction, वो क्या प्राइमरी कंसर्न है? आपको इंस्ट्रक्शन देना है कि आपको इलास्टिक्स चेंज करना है। ठीक है, 24 कलाक में एक ही बार। तो ऐसा क्या होता है इलास्टिक्स में, उसके बारे में आपको आंसर देना है।
44 में आंसर बी आया है। तो आपको ये टेक्निक अच्छी लगी है, लॉन्गेस्ट ऑप्शन जो है वो आपको टिक कर देना है। कोई बात नहीं, ये तो बहुत सारी टेक्निक्स ऐसी अलग अलग आएगी। विट्स का अप्रेसल कैलकुलेशन ऑन ए lateral cephalogram, A point or B point projected perpendicular onto the functional occlusal plane. Point AO from A point is anterior to point PO in a male patient. What is Witt's value and skeletal diagnosis? ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा विट्स वाला क्वेश्चन है। 45। दो मई को नीट एमडीएस की एग्जाम है। जो भी बच्चे प्रिपेयर करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, क्योंकि उसमें भी अच्छा स्टाइपेंड होता है। 3 साल आपको सेफ्टी मिल जाएगी, घर वाले परेशान नहीं करेंगे शादी के लिए, एंजॉय कर सकते हो कॉलेज लाइफ। और सबसे बढ़िया बात है कि अभी थोड़े सालों में गुजरात में बहुत सारी क्लास वन की रिक्रूटमेंट आएगी 5 साल के बाद, क्योंकि ये लोग प्लान कर रहे हैं कि जहाँ जहाँ तालुका से सीएचसी है वहाँ भी क्लास वन मैंडेटरी वो कर देंगे। तो कम से कम 500 क्लास वन की पोस्ट आएगी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आफ्टर 2030 या 32। तब जाके आपको ऐसा लगेगा कि मैं एमडीएस होता। ठीक है, यहाँ पे सब लोगों ने ए बता दिया है। कोई बात नहीं, आंसर यहाँ पे बी है। मुझे लग रहा है कि क्वेश्चंस में थोड़ी गलती थी, इसलिए कोई नहीं बता सके। 46 क्वेश्चन ही गलत था शायद। 46 क्वेश्चन, यू हैव कंप्लीटेड इनिशियल अलाइनमेंट विथ 0.014 इंच नाइट आई, 0.01 नाइट आई हेड्स, teeth are visually straight. What is the primary purpose of moving into a this dimension stainless steel wire? ठीक है, ट्रांजिशनिंग का क्या प्राइमरी पर्पस होगा? क्वेश्चन नंबर 46। हमारे व्हाट्सएप ग्रुप है, उसमें 600 लोग या 700 लोग हैं। 100 या 200 लोग गुजरात वाले ही है, जीपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं। लेकिन कम नसीबी या दुर्भाग्य ये है कि हम ये लेक्चर जो दे रहे हैं वो आराम से देख सकते हैं, सॉल्व भी कर सकते हैं, लेकिन 3-4 लोग ही एक्टिव है। तो either they are ignoring, either they are going for negligence, या either they have better options। कोई बात नहीं, we are not telling anything, बट ये सिनेरियो है गुजरात का। आज एक लड़की की क्वेरी आई कि सर मुझे डेंटल जीपीएससी का क्लास ज्वाइन करना है। तो मैंने बोला कि आप अभी जो जॉब कर रहे हो 20,000 की वो क्विट कर दीजिए, क्योंकि आपके पास बहुत ही कम टाइम है। तो मुझे ऐसा आंसर दिया कि मेरी प्रैक्टिस छूट जाएगी। तो बढ़िया, मुझे आंसर अच्छा लगा कि उनको क्लिनिक पर फोकस करना है। तो उनको ये पता नहीं कि हर साल हर महीने को आपको 1.5 लाख कौन देगा। अभी सैलरी नियरली जो क्लास टू की है वो अराउंड 1.10 तो है ही। ठीक है, और एट्थ पे आ जाएगा तो 1.60 लाख हो जाएगी। ठीक है, क्लास टू की बात कर रहा हूँ। क्लास वन की सैलरी है 1.50 अभी मेरी, और क्लास वन की आफ्टर एट्थ हो जाएगी 2.10 जितनी। तो ये डिजिट्स कोई आपको अट्रैक्शन या कोई लूरिंग के लिए या कोई लॉटरी के लिए नहीं बोल रहा हूँ। अब मुझे ये बताइए कि 1.60 लैक्स पर मंथ कमाने के लिए आप 20,000 की जॉब है वो एक साल में कितना कमा के देगी? 2 लाख कमा के देगी। तो आपकी एक मंथ की सैलरी है जॉब के लिए। कोई बात नहीं, सबकी प्रायोरिटी होती है। आपको आपके लिए भी ये मोटिवेशन है, आप जो भी काम कर रहे हो अभी वो सब थोड़ा बॉयकॉट करिए। क्लिनिक में पेशेंट कम आएंगे तो जाने दो। आपका क्लिनिक में ऐसा नहीं ना कि आप नहीं जाओगे तो आपके पेशेंट्स
सुइसाइड कर लेंगे, आपके जो चाहत हो, आपके घर वाले आपको भगा देंगे। तो मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि विदाउट सेक्रीफाइस, विदाउट मोटिवेशन, विदाउट डिसिप्लिन, मैं 16 आवर्स पढ़ता था मेरे नीट एमडीएस के टाइम। मुझे जितनी भी बुक्स थी वो सब टिप ऑफ द टंग थी, कोई भी एमसीक्यू हो। तो ये मैं एक्स्ट्रा थोड़ा इसलिए बोल रहा हूँ कि आपको अगर डीप में नहीं जाना है तो रट लीजिए। रटने में नहीं मजा आ रहा है तो बार बार कोई भी प्रीवियस ईयर के पेपर सॉल्व कीजिए। आपकी टेक्निक क्या है वो आपको डिसाइड करना है। ठीक है, वापस आ जाते हैं 46 क्वेश्चन पर। यहाँ आंसर है ए। ठीक है, स्लाइड मैकेनिक्स यूज करके स्पेस को क्लोज करना है। ठीक है, तो ये क्या करोगे, जो रेक्टेंगुलर स्टेनलेस स्टील है वो स्लाइड मैकेनिक्स यूज करेंगे। ठीक है, और वो रेक्टेंगुलर यूज करोगे तो आपको स्टिफनेस और टॉर्क मिलेगा। हमारी मैंने जब प्रिपेयर किया था ना तब ये क्वेश्चन आ रहा था। स्लीपिंग सिकनेस नीट एमडीएस की एग्जाम में दे रहा था, तब ये क्वेश्चन आया था। स्लीपिंग सिकनेस इज कॉल्ड कॉस्ड बाय, तो उसका ए आंसर था से फ्लाई। फिर दूसरे और भी थे। तो ये रटना होता है। अब कहाँ स्लीपिंग सिकनेस की मैं साइकोलॉजी पढ़ूंगा, उसकी मैकेनिज्म पढ़ूंगा। और ये फ्लाई तो मैंने देखी नहीं, लेकिन ऐसी फ्लाई थी से फ्लाई। तो ये रटना होता है। तो ये भी अच्छी बात है। तो मेरे नीट एमडीएस में यही क्वेश्चन आ गया, फ्लाई लिख दिया से फ्लाई, तो मुझे अच्छे मार्क्स, मतलब ये वो मार्क मिल गए। अब हमारे हुनर धुरंधर डेंटिस्ट क्या करते हैं, स्लीपिंग सिकनेस की डेफिनेशन, इटियोलॉजी, कहाँ कहाँ होता है, कौन सी जगह होता है, से फ्लाई के पिताजी कौन थे, माताजी कौन थे, उसके बगल में कौन रहते हैं, वो फ्लाई क्यों है, मॉस्किटो क्यों नहीं, वो रिसर्च करने के लिए 10 मिनट बिगाड़ेंगे। मोरल ऑफ द स्टोरी, जब टाइम आपके पास नहीं होता है तो टू द पॉइंट ये है तो ये लिखना है। ठीक है, तो उसके आगे के क्वेश्चन में क्या कोरिलेशन है इसका। रेक्टेंगुलर वायर है, ठीक है, तो स्टिफ है, स्टिफनेस प्रोवाइड करेंगे। तो आपको क्या पता चला कि स्पेस अगर ज्यादा जल्दी क्लोज करनी है तो रेक्टेंगुलर क्रॉस वायर जरूरी होता है। ये लॉजिक आपको समझना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। माउस में लगाया गया है। You are using a Nance arch to provide anchorage in the maxillary arch. The Nance arch utilizes which of the following? ये हमने पढ़ा था, कुछ बटन आता है, ठीक है, टू रेजिस्ट द मिजल मूवमेंट ऑफ मोलार्स। ये तो इजी क्वेश्चन है, कल के लेक्चर में डिस्कस कर लिया है। तो 47 में क्या आंसर आएगा। सही बात है, रुगाए वाला पोर्शन जो होता है वॉल्ट, वहां पे वो बटन लगा देंगे और वो रजिस्ट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। A patient has gingival display, गम्मी स्माइल है, ठीक है। सिफेलोमेट्रिक एनालिसिस शो से मैक्सिलरी हाइट नॉर्मल है, ठीक है, बट द पेशेंट हैज वेरी शॉर्ट अपर लिप। तो ये एनाटॉमिक वाला जो माउथ ब्रीदिंग होता है ना वो है, यानी कि लिप शॉर्ट है, एनाटॉमिक पोर्शन है। तो कौन सी ट्रीटमेंट करोगे गम्मी स्माइल की। 48 क्वेश्चन। 48 क्वेश्चन। एक आंसर आया है सी। ठीक है, सही बात है, बोटॉक्स की टेक्निक कुछ आती है, लिप रिपोजिशनिंग सर्जरी आपको करवाना पड़ेगा। 49th question. A patient asks if their wisdom teeth will push their front teeth and cause them to overlap. Based on current orthodontic literature, what is the best response? हम बोलते हैं ना कि दापनी दाढ़ आवશે એટલે જગ્યા જતી રહેશે, तो ये
ऑर्थोडोंटिक लिटरेचर के हिसाब से क्या रिस्पॉन्स अच्छा है, वो आपको आंसर देना है। हम शायद 1 तारीख से मॉक डेंटल जीपीएससी की एग्जाम्स एप्लीकेशन में आ जाएगी। ट्राई करूंगा कि मैक्सिमम टेस्ट अपडेट हो जाए एप्लीकेशन के अंदर। वेबसाइट के अंदर तो अनलिमिटेड है ही, लेकिन यहाँ पे लिमिटेड 200 क्वेश्चंस होंगे, ताकि आपको ऑल इंडिया रैंक भी आपका पता चले। विल बी ट्राइंग, ठीक है, 1 तारीख से। तो तब तक आपको जितना हो सके उतना दूसरे सब्जेक्ट भी पढ़ना पड़ेगा। दिन रात मेहनत करनी पड़ेगी, सोना बंद करना पड़ेगा, मोबाइल को खाली स्टडी के लिए यूज करना है। थर्ड मोलर इरप्शन एंड क्राउडिंग। मैंने जब जीपीएससी की प्रिपरेशन की तब मैं तो फैमिली लाइफ जी रहा था, तो थोड़ा फैमिली भी बॉयकॉट किया था। तो ये भी मोटिवेशन आपके लिए अगर काम आए तो। पेशेंट आस्क, ठीक है, पेशेंट पूछेगा, बोलेंगे कि आप क्यों पूछ रहे हो, रिप्लाई दो तो ये आंसर हम देंगे। 49 में आंसर है बी, और कोई लोग बता रहे हैं ए, लेकिन आंसर इज बी। लोअर incisor crowding occurs even in people who are congenitally missing wisdom teeth। क्राउडिंग के बहुत सारे रीजंस होते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन हम बहुत नहीं करा करा सकेंगे आज। पीडीएफ आपको भेज देंगे, सॉल्व करेंगे आप अपने हिसाब से, आपके टाइम से। और ऐसा हो तो आज कंटिन्यू पीडीएफ में आपको अभी भेज दूंगा, आप ये कंटिन्यू सॉल्व कर देना। यू आर यूजिंग द सर्वाइकल वर्टिब्रल मैचुरल सीवीएम मेथड। पेशेंट इज एट CS4। आगे हमने पढ़ा था CS1, CS2, CS3, CS4। व्हाट डज CS4 सिग्निफाई रिगार्डिंग pubertal growth spurt? टुडेज लास्ट क्वेश्चन, आंसर भी शायद है, लेकिन 50 में ए आंसर आएगा। ठीक है, तो अभी तक का स्कोर मुझे बता दीजिए सब लोगों का। अब देखो, जो भी एमसीक्यूज आप पढ़ोगे, मान लो कोई भी बुक में से, तो वो तो शायद आए ना आए रिपीट क्वेश्चंस, बट ये जो एक्सप्लेनेशन होते हैं, आपने देखा कि CS3 का एक क्वेश्चन था, तो आपने पढ़ा फिर CS4 के बारे में, तो अब ये CS4 का क्वेश्चन आया। तो ऐसे करके आपको आंसर बनाने हैं, ठीक है। तो आज के लेक्चर में कितने कितने मार्क्स आए वो सब लोग कमेंट करेंगे। अक्ष को 50 में से 50 आए। बहुत सारे लोगों को पता नहीं कि अक्ष कौन है। मेरा बेटा है अक्ष। आपका स्कोर बताइए। सही बात है, एनीथिंग अबाउट अबाउ मतलब 50% से ऊपर जितने भी स्कोर है अच्छी बात है। डेंटल जीपीएससी में यही रिजल्ट आता है सबका। सावन का भी 30 सही है। अबाउट 25 हमारा होना चाहिए स्कोर, यानी कि आप सही रास्ते पर हो। अब ये 32 से 35 होगा थोड़े थोड़े टाइम में, 36 होगा। हम जितने भी कोशिश करेंगे, सही बात है। सबके अच्छे स्कोर है। किरण ने आज टॉप किया है, खूब खूब धन्यवाद। तन्मय जी, आपके कितने स्कोर हुए? कोई बात नहीं, जो भी बच्चे 25 के ऊपर है, अच्छे स्कोर ला रहे हैं, हम ये पीडीएफ आपको तुरंत ही अभी भेज रहे हैं, ठीक है। आज के लेक्चर में जिन्होंने भी ये देखा, एमसीक्यू सॉल्विंग, ये स्ट्रेटेजी लास्ट मोमेंट पर काम आती है। मैक्सिमम प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करिए, ठीक है, और आप आराम से ये एग्जाम्स पास हो जाओगे। टाइम आपके पास बहुत है ऐसे, अगर आप सही तरीके से प्रिपरेशन करोगे तो। आज के लेक्चर में इतना काफी है। आपने आपका टाइम हमारे लिए स्पेंड किया, हमारे सपोर्ट के लिए, उसके लिए थैंक्स। हम थोड़े टाइम में स्टेट पीएससी, एम्स की एग्जाम, नीट एमडीएस तीनों कोर्स लॉन्च करने वाले हैं। तो हमारा सफर जो है कारवा वो यहाँ पे एंड नहीं होता है। जो भी लोग व्हाट्सएप से जुड़ना चाहते हैं, 9408691092, उस पर आप व्हाट्सएप करके ज्वाइन हो सकते हो। आज के लेक्चर में आपने जो सीखा वो रिकॉल करना है जब भी आप फ्री बैठे हो तभी, ठीक है। हैव अ नाइस टाइम।
and good night. For all those who are watching on YouTube, please don't forget to share, subscribe, because this is the platform where you will gain the dental coaching not only for Indian exams but also for abroad exams. Thanks for watching. Have a nice time. Good night.